Hello students, in this session we are going to discuss about the law of parallelogram. So what is actually law of parallelogram? Law of parallelogram is the method to add two vectors, right? So what is the statement of law of parallelogram? The statement is, if two vectors can be represented by two adjacent sides of the parallelogram, then the diagonal passing from that point only in magnitude and direction will represent the resultant of those two vectors, right? So this is the statement of parallelogram law. So here we derive the expression for the magnitude of resultant and direction of the resultant. So let us start. So let us consider two vectors, vector P and vector Q, having magnitudes P and Q and angle between them is theta, right? So I am considering here two vectors, vector P and another vector Q, right? So according to parallelogram law, what will do? We will try to represent these vectors with the adjacent side of the parallelogram. So because this is free vector, so we can take this vector here without changing its magnitude and direction, right? So I have put it here, this is vector P and vector Q, right? Now we can draw the parallelogram. How we can draw? Same side parallel to this and another side parallel to this, right? So this complete one is the parallelogram. Now we can draw the diagonal, right? There are two diagonal, one is this one and another one is this one. But according to law of parallelogram, we will take only this diagonal. हम इसी डायगोनल को कंसीडर करेंगे जो इन दोनों के इनिशियल पॉइंट से पास हो रहा है, राइट? सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, दिस डायगोनल विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ these two vectors in magnitude as well as in direction. So magnitude is this much length, direction away from this point, right? So angle between them is theta given, right? Now we have to calculate this magnitude value and direction. Let us consider the direction of this resultant vector with P is alpha, right? So now we have to calculate this alpha value and magnitude of this resultant, that is R, length of the diagonal. So what we'll do, we can draw the perpendicular from this corner by increasing this P vector. So ये perpendicular draw करने से क्या हुआ, ये एक हमें right angle triangle मिल गया. Now what about these sides? ये sides क्या होंगी? Because this is Q vector and what is the magnitude of this side? Magnitude of this side is Q, right? इनके बीच का एंगल थीटा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल भी थीटा होगा. नाउ व्हाट अबाउट दिस साइड? दिस इज द कंपोनेंट ऑफ दिस Q cos theta, and this is perpendicular component, that will be Q sin theta. Now we can take this triangle out. हमने इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लिया. अब इस ट्रायंगल का जो एंगल है वो अल्फा है, कंप्लीट ट्रायंगल का,
इसकी ये साइड कंप्लीट साइड P plus Q cos theta, right? And what is this perpendicular? Perpendicular is Q sin theta, right? So sides are given. Now what is this? This is the magnitude of resultant vector, let it be R, right? So because this is the right angle triangle, so we can apply the Pythagoras theorem for this triangle, right? And we can calculate the hypotenuse value. So first point is magnitude of the resultant. Magnitude of the resultant, that is represented by capital R. So hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square. When we remove the square, here will be square root, right? So base square means P plus Q cos theta whole square plus Q sin theta whole square, right? Now A plus B formula we can apply here. This will become P square plus Q square cos square theta plus 2PQ cos theta, 2PQ cos theta, right? Plus here Q square sin square theta, right? Okay, so just look at these two terms. Q square is common, and in bracket there will be cos square theta plus sin square theta, and that's the famous trigonometric relation. This will be equal to 1, right? So finally we can write P square plus Q square and sin square theta plus cos square theta will become 1, so multiplied by 1 plus this term 2PQ cos theta, right? Square root of all these terms, right? So this is what the magnitude of the resultant, right? Magnitude of the resultant, simply we can learn it, R equal to root of P square plus Q square plus 2PQ cos theta, right? Now we have to calculate the direction, that is alpha, correct? So direction of the resultant, alpha हमें calculate करना है. So we can take tan of this alpha, right? Tan of this alpha. Tan alpha equal to perpendicular divided by base, right? Perpendicular is Q sin theta divided by P plus Q cos theta, right? So this is the formula of tan alpha. Now alpha will be equal to tan inverse Q sin theta divided by P plus Q cos theta. अब कुछ लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर tan ही क्यों कंसीडर करते हैं? अगर हमें अल्फा कैलकुलेट करना है, सो वी कैन टेक sin alpha cos alpha as well. So why we are considering tan alpha here? Because we have known values of P, Q and theta. अगर हमने sin cos लिया तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, R वैल्यू आ जाएगी, और R पहले से अननोन है, ये हम कैलकुलेट करेंगे तब पता चलेगा, राइट? सो जब हम tan अल्फा कंसीडर करते हैं, देन ओनली द फॉर्मूला विल बी इन टर्म्स ऑफ नोन वैल्यूज, राइट? दैट्स व्हाई वी टेक हियर tan अल्फा. सो अल्फा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस, राइट? सो होपफुली दिस विल बी क्लियर. सो मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट कर लिया और डायरेक्शन कैलकुलेट कर लिया. सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, राइट? नाउ इसी में स्पेशल केसेस जब एंगल की वैल्यू डिफरेंट होगी, लाइक थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, सो दोज विल बी स्पेशल केसेस, राइट? और उसको भी यहाँ पे हम अभी देखते हैं कि स्पेशल केसेस में कैसे इनका डायग्राम बनेगा और उनका रिजल्टेंट क्या होगा, राइट? ओके, सो स्पेशल केस देखते हैं. फर्स्ट स्पेशल केस इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री. सो फर्स्टली वी विल फाइंड द रिजल्टेंट एंड इट्स डायरेक्शन बाय मैथमेटिकल फॉर्मूला
जो हमने अभी जनरेट किया है, उसके बाद उसको डायग्राम पे भी ड्रॉ करेंगे कि व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, राइट। सो अगर थीटा इक्वल टू 0 है, सो हमारे पास फॉर्मूला जो है उसमें हम थीटा इक्वल टू 0 अप्लाई कर देंगे। सो व्हेन वी अप्लाई थीटा इक्वल टू 0, आई एम राइटिंग फॉर्मूला हियर, आर इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos theta, right, and tan alpha that is equal to q sin theta divided by p plus q cos theta, right। ये दोनों फॉर्मूले हैं। सो इन दिस फॉर्मूला अप्लाई थीटा इक्वल टू 0, व्हेन वी पुट थीटा इक्वल टू 0, cos 0 will be 1, so this will become p square plus q square plus 2pq, right, and this is what, this is the formula of p plus q whole square, so p plus q whole square, right। now square and square root will be managed, so p plus q, right, means the magnitude of resultant will be equal to the summation of individual magnitudes, means if two vectors are in same direction, then उनके magnitudes directly add हो जाएंगे, means ये फर्स्ट वेक्टर हो गया, दूसरा वेक्टर हमने यहीं से स्टार्ट कर दिया, सेकेंड वेक्टर, so total magnitude will be this one, p magnitude and q magnitude, right। तो इस तरीके से टोटल मैग्नीट्यूड आ जाएगा। नाउ व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, डायरेक्शन रिजल्टेंट का हम डायग्राम से भी देख सकते हैं, सेम डायरेक्शन में होगा। सेम डायरेक्शन मींस यहाँ पे थीटा 0 है तो अल्फा भी 0 आना चाहिए। फॉर्मूले से कैसे आएगा, जस्ट पुट हियर थीटा इक्वल टू 0, राइट, सो tan अल्फा विल बी इक्वल टू q sin 0 डिग्री, वैल्यू विल बी 0, tan अल्फा इक्वल टू 0, सो अल्फा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री, right। so this is first special case। now what about second special case, for second special case theta equal to 90 degree, right। now take theta equal to 90 degree and put in this formula, what will be r value, cos 90 degree equal to 0, right, so this term will become 0। now what's the answer, p square plus q square, that will be the magnitude of resultant। now tell me what about the direction, if we apply 90 degree this will become 1, right, or and here this will become 0, so q into 1 divided by p, this term 0, so tan alpha equal to q divided by p, ये आ गया। अब इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो कैसे आएगा आंसर। ये हो गया p वेक्टर एंड दिस इज q वेक्टर, राइट, परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से, सो पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे। व्हाट विल बी द डायगोनल, डायगोनल विल बी दिस ओनली, राइट, और ये रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, मींस जो इधर वाला कंपोनेंट आ रहा था वो 0 हो गया, राइट। सो सिंपली यहां से हम ये थीटा, हमें पूरा एंगल गिवन है जो कि 90 डिग्री है और ये एंगल अल्फा होगा, सो tan अल्फा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ये q जो है परपेंडिकुलर है और ये बेस है, सो q बाई p आ गया, मींस वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल वेक्टर हमारा q है और हॉरिजॉन्टल वेक्टर p है, इन दोनों का रेशियो tan अल्फा आ जाएगा। एंड व्हाट अबाउट द रिजल्टेंट, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, सो ये हाइपोटेन्यूज हो गया रिजल्टेंट, रिजल्टेंट हाइपोटेन्यूज हो गया, मींस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर का रूट, दैट विल गिव द रिजल्टेंट। सो दिस इज व्हाट द सेकंड केस व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। नाउ थर्ड केस व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, राइट, सो जस्ट लुक इट हियर, when theta equal to 180 degree, cos 180 degree value is -1, cos 180 degree value is -1, so formula will become r equal to p square plus q square minus 2pq and -1, so माइनस यहाँ पे आ गया,
and this is what p minus q whole square. So we can write it p minus q. Clear? Whole square and root will be managed, right? So r हमारा आ गया, इन दोनों का डिफरेंस. नाउ this resultant will be positive if p value is more than q value. This resultant will be positive if p value is more than q value, and this resultant will be negative if p is less than this q value. Just look at here. This is p vector and this is q vector. दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है. सो एंगल जब इसको यहां पे पुट करेंगे, सो ये एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, राइट? 180 डिग्री एंगल हो जाएगा. सो रिजल्टेंट जब हमें कैलकुलेट करना है p माइनस क्यू, अगर p की वैल्यू ज्यादा है तो नेट जो वैल्यू आएगी इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो इस डायरेक्शन में आएगी, तो ये पॉजिटिव आएगा रिजल्टेंट. अगर q वैल्यू बड़ी है तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा. सो व्हेन p इज मोर देन q, then alpha will be 0 degree, right? So what about the angle when p is greater than the q? So alpha क्या होगा? 0 degree होगा. When p is less than q, then alpha will be 180 degree, right? So ये resultant की direction हो गई. Clear? So hopefully these all special cases will be clear to all of you. And next, ये रिजल्टेंट क्या होता है? ये दोनों वेक्टर्स का समेशन होता है, वेक्टर सम. अब अगर मैं बोलूं कि दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो वो इस पैरेललोग्राम लॉ से कैसे हो सकता है? वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इन्हीं सबसे हो जाएगा, देखते हैं. ओके, सो सपोज देयर आर टू गिवन वेक्टर्स, वेक्टर p एंड वेक्टर q, एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा, राइट? एंड वी हैव टू फाइंड द r डैश वेक्टर व्हिच इज व्हाट? द वेक्टर p माइनस वेक्टर q, मीन्स डिफरेंस ऑफ दीज टू वेक्टर्स. इन दोनों वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू आ रही है उसे यहाँ पे r डैश से रिप्रेजेंट किया गया है, वो हमें कैलकुलेट करना है. सो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं. सो इस वैल्यू को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर p प्लस माइनस वेक्टर q. एंड व्हाट इज दिस माइनस वेक्टर q? This minus vector q is the negative vector of q vector. ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं कि ये q वेक्टर का नेगेटिव है. एंड वी आर वेल नोन हाउ टू ड्रॉ द नेगेटिव वेक्टर. अगर कोई वेक्टर p इस तरीके से बना हुआ है, तो इसका नेगेटिव वेक्टर जो होगा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, इसको हम माइनस p से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? सो मैग्नीट्यूड इसका सेम होगा, बस डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी. सो हम क्या करेंगे, पहले गिवन क्यू वेक्टर से नेगेटिव क्यू वेक्टर ड्रॉ करेंगे. उसके बाद हमारे पास दो वेक्टर होगा, वन इज p वेक्टर, अनदर वन इज माइनस क्यू वेक्टर, राइट? फिर उन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर देंगे, और ऐड करने के लिए हमारे पास मेथड है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम. तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करके उन वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं सिंपली. सो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करके उन वेक्टर्स को सिंपली ऐड कर सकते हैं. सो लेट अस सी, इफ दिस इज p वेक्टर, दिस इज if this is q vector, this is minus q vector. How we can draw the parallelogram? Parallelogram हमने एक साइड ये कंसीडर कर लिया p, वेक्टर p, and another इस वेक्टर को हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे. This is what? वेक्टर -2, राइट? इस वेक्टर को यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया. दिस इज माइनस वेक्टर 2. क्लियर? अब इससे हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. और वो पैरेललोग्राम कैसे ड्रॉ होगा? इसके पैरेलल दूसरी साइड, राइट? एंड इसके पैरेलल दूसरी साइड, ये बनती. Now, what will be the resultant of these two vectors? Resultant will be this diagonal only, right? This diagonal, clear? And this resultant is r dash. This resultant is r dash vector. Means vector p minus vector q, right?
सो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए इसको हम पहले वाले लॉ से कैसे रिलेट करते हैं कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशन अगर हम कर रहे होते तो ये वेक्टर को ऐसे ड्रॉ करते, वेक्टर क्यू और पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता और रिजल्टेंट क्या होता, ये होता आर वेक्टर, राइट। ये थीटा था, ये थीटा था, इनका रिजल्टेंट ये आया, राइट। अगर हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्टेंट ये आया। अब अगर इस पूरे डायग्राम को देखेंगे तो ये पैरेललोग्राम बन रहा है पूरा, ठीक है। और अगर इस साइड को यहाँ पे हम शिफ्ट करें, इस साइड को यहाँ पे शिफ्ट करें तो ये पूरा फिट हो जाएगा, इसी के इक्वल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में आएगा। मींस कि ये जो दूसरा डायगोनल बन रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर दो वेक्टर का एडिशन निकाल रहे हैं वो रिप्रेजेंट हो रहा है उसी पॉइंट से पास होने वाले डायगोनल से। सो जो दूसरा डायगोनल होगा दैट विल रिप्रेजेंट द सब्ट्रैक्शन ऑफ दोस टू वेक्टर्स, राइट, सब्ट्रैक्शन ऑफ दोस टू वेक्टर्स। डायग्राम को सिंपलीफाई करते हैं। तो ये दो वेक्टर्स पी एंड क्यू है, थीटा है, राइट, और इनका रिजल्टेंट आर है और ये अपोजिट डायगोनल जो है ये आर डैश वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर दिस आर इज द समेशन ऑफ दीस टू वेक्टर्स, वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट कर चुके हैं। उसी तरीके से आर डैश का समेशन ऑफ वेक्टर पी माइनस वेक्टर क्यू, राइट। सो आर और आर डैश यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक ये डायगोनल दूसरा अपोजिट डायगोनल, राइट। So I think this concept of negative vector will be clear to all of you, right? Thank you.